After the service, we'll have the communion. Okay. Every year before our church anniversary, we used to have a 7 days fasting prayer. But I understand this pandemic time, we may not be able to have the length. But we are having 3 days fasting prayer. July 6th, 7th, 8th. All 3 days evening, there will be a prayer here in this place, 8 o'clock to 9 o'clock. 1 hour, you can fast as you wish. जैसे आपको उपवास करना आप चाहते हो वैसे आप उपवास कर सकते हो. You can fast for 1 time, 2 time, 3 time, all 3 days. Most welcome. But it should be depend upon your health. आपका health के हिसाब से. If you were recently in COVID, I will advise no fasting. But if you feel your health is fine, you are fit, go ahead. 3 days fasting. Tuesday, Wednesday, Thursday. Thursday is the church anniversary, but we will go ahead celebrating next week. On Sunday we'll have a celebration. Hallelujah. Let's go to the word of God, the promise the Lord has given to us for this month. This was Genesis 22 verse 8. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे. परमेश्वर ने इस महीने जिस प्रकार से हमें प्रतिज्ञा दिया है, वाचा दिया है, हम निकालेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय. Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. 7वें पद में इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता. उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख. Yes, yes. आग और लग 22:8. इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा. Hallelujah. Hallelujah. The Lord himself will provide for the sacrifice. परमेश्वर आप ही होम बलि के लिए उपाय करेगा. We need to speak by faith, my brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें विश्वास से बोलना है. If we speak just like the news channel person, if we speak just like outside what the people are talking, we will break down. यदि हम जिस प्रकार से समाचार टीवी में हम देखते हैं उनके जैसा हम बोलेंगे, बाहर के लोग जैसे बोलेंगे, तो हम टूट जाएंगे. Abraham knows exactly what God wants. इब्राहिम को मालूम है परमेश्वर को क्या चाहिए. He knows what's going to happen to his son. और उसको मालूम ये भी है कि उसके बेटे के साथ क्या होने वाला है. When it come to God, Abraham had no other option. What God asked, I will give. और जब अब्राहम परमेश्वर के पास आया तब अब्राहम के पास कोई और विकल्प नहीं था. उसके पास एक विकल्प था कि जो परमेश्वर कहता उसको मैं करूं. Son is asking to father, where is the sacrifice lamb? बेटा अपने पिता से कहता है कि पिता, होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? Abraham answered, God himself will provide. और इब्राहिम ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा. What is this crisis situation that you are walking, my brothers and sisters? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप कैसी कठिन संकटमय परिस्थिति में से होकर के गुजर रहे हैं? You need to speak like Abraham. Abraham was in such a tensed, maybe so troubled in heart and mind, but his words were coming, God himself will provide son. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब्राहम भी इस प्रकार के तनाव भरी परिस्थिति में था, लेकिन उसने उस प्रकार के विश्वास की बातें बोली है. The early morning prayer, these are the 5 things that I shared. I want to share it again. 5 blessings God will do in this month. और सुबह की प्रार्थना, पहली तारीख की प्रार्थना में हमने जो बातें आप लोग को बताई थी, मैं जल्दी से उन बातों को आपके सामने रखूंगा. Every seed you have sown will bring harvest. जितने भी बीज आपने बोए हैं, आपके लिए वो फसल पैदा करेगा. God cares. परमेश्वर देखभाल करेगा. You may be invested in so many places, so many church, so many missionaries, so many people that you have been supporting. आपने बहुत सारे जगह पे निवेश किया होगा, बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे पास्टर्स को, बहुत सारे लोगों को आपने सहायता की होगी. You need to walk just like Abraham. God himself will provide. I have sown the seed. God himself will provide. आपको अब्राहम के समान चलना है और कहना है कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा. The seed you put so many years ago will have a harvest now. जो बीज आपने बहुत साल
पूर्व बोए हैं, अभी आपके लिए वो फसल देगा। I know some of you are sitting here in spite of the severe financial crisis, tough times you are walking through, but when it comes to sowing the seed, without stopping, you have been keep on sowing the seed. और मैं जानता हूं आप में से कई लोग जो यहाँ बैठे हैं बहुत ही आर्थिक समस्याओं में से होकर के गुजर रहे हैं, तनाव में हैं, लेकिन आप अभी भी लगातार परमेश्वर के लिए बीज बोते जा रहे हैं। Some of you, when you had enough, you bless people more than enough. और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, आपके पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, आप उससे भी ज्यादा लोगों के लिए सहायता भेज रहे हैं। God is not forgotten what you have done to the poor people. God is not forgotten what you have done to the missionaries, pastors, churches. Yes, when your wallet were full, you blessed without counting. और परमेश्वर इस बात को कभी नहीं भूलता, जैसे आपने गरीबों को मदद किया, पास्टर्स को मदद किया, जब आपका बटुआ पूरा भरा हुआ था तब भी आपने मदद किया है, खाली था तब भी आपने मदद किया है। परमेश्वर उस बात को याद रखता है। Your seed is alive. आपका बीज जो है जीवित है। Hallelujah. Hallelujah. It will come. You will have the harvest in abundance. और वो आपको भरपूरी में फसल देगा। Second one, दूसरी your बात, forgotten gifts and seeds will bring you harvest. जो आपके तोहफे भेंट जो भूले गए हुए हैं, बुलाए गए हुए हैं, वो आपको एक कटनी देगा। Some of the things you have forgotten. बहुत सारी बातें जो है, कुछ चीजें भूली गई है, You yourself, you do not know. God knows it. आप भी उनको नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर उसको जानता है। Even God knows the people you have given a lift from the church to house, house to the church. और परमेश्वर इस बात को भी जानता है कि किसी को आपने चर्च में से परमेश्वर के भवन से उनके घर तक पहुंचाया और उनके घर से परमेश्वर के भवन तक लेकर के आए हैं। God himself will provide. परमेश्वर अपने आप उपाय करेगा। I want to tell you, as a child of God, as you are in the kingdom of God, nothing is lost or a lost for the children of God. और जैसे कि आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के राज्य में हैं, कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो आपने खो दी है या आपको नुकसान हुआ हो। Your things, it's always sowing. It's never a lost. आपकी बातें, आपकी चीजें जो आपने बोई है, कभी भी नुकसान में नहीं जाएगी। Even in our funeral, our burial is sowing a seed. हमारे जो दफनाए जाने के समय में भी वो एक बीज बोने की अवस्था है। Come on, somebody say. Hello. That's why when you put it, in the funeral, put it in the box and put it in the pit. It's like a sowing a seed. और ऐसे ही हम देखते हैं कि उस कफिन बॉक्स में उनको डाल करके जब अंदर हम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बीज बोने के जैसा। Third one. तीसरी बात, People who forgotten your kindness will remember and will show you kindness. जिन लोगों के प्रति आपने कुछ भलाई को दर्शाया है, भलाई प्रकट किया है, हो सकता है वो लोग भूल गए होंगे, लेकिन वो आपको प्रति फिर से याद करके आपके प्रति भलाई को प्रकट करेंगे। Just like the cupbearer in the prison with Joseph. यूसुफ के साथ में बंदी गृह में जो राजा के लिए सामान ले जाने वाला व्यक्ति, खाना पेश करने वाला व्यक्ति, जिसे उसने याद भूल गया यूसुफ को, ऐसे ही He remembered, oh, I know a man in prison who interpreted my dream. लेकिन उसको एक दिन याद आया और उसने कहा कि हाँ, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसने मेरे स्वप्न के बारे में मुझे बताया था। So many people forgotten you, your kindness. बहुत सारे लोग आपको और आपकी भलाइयों को भूल जाते हैं। In a right time, God will remind them and God himself will provide your needs. लेकिन सही समय पर परमेश्वर उनको याद दिलाएगा और परमेश्वर आप ही उनके लिए प्रबंध करेगा। Fourth one, wherever, whatever you lost will be found back. कहीं भी कभी भी आपने जो कुछ भी खोया है, आप उसको वापस प्राप्त करेंगे। Whatever you lost, जो कुछ भी आपने खोया है, even whatever people have taken which is not returned will return to you in Jesus' name. और यदि लोगों ने भी आपसे कुछ ले लिया है और आपको वापस नहीं किया है, यीशु के नाम में वो भी हत्या ली है, तो यीशु के नाम में वो वापस आपको मिलेगी। We need to keep declare, my God will provide. हमें लगातार उन बात को बोलते रहना है कि मेरा परमेश्वर उपाय करेगा, मेरा परमेश्वर प्रबंध करेगा। Fifth one, पांचवी बात, your dead business and the losses in the investment will realive and revive. आपका
ठप पड़ा हुआ व्यवसाय, आपका मरा हुआ धंधा और जो आपने जहां पर निवेश किया है वो यदि घाटे में भी गया है तो फिर से वो वापस वहां पर पुनर्स्थापित होगा, पुनर्जीवित हो जाएगा। You know, God promised to Abraham, I will give you a land. I'll make your children like a stars. और परमेश्वर ने अब्राहम को जो है प्रतिज्ञा दिया और कहा कि मैं तेरे संतानों को तारागण के समान बढ़ाऊंगा। As time goes, century goes, people thought God forgotten. सदियां बीत गई, वर्ष बीत गए, लोग ने समझा, लोग ऐसा सोच रहे थे कि परमेश्वर भी भूल गया। But never God forgets. लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूला। Hallelujah. Hallelujah. He will never forget, my brothers and sisters. वो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो कभी नहीं भूलता। He has not forgotten the children of Israel. उसने कभी भी इस्राएली लोगों को भूला नहीं। The promise he made with Abraham, he was alone. There was no paper document. There was no recording, but God is faithful. उसने जो इस्राएली लोगों के साथ, जो इब्राहिम के साथ जो वाचा बांधी थी, वहां पर इस प्रकार के कोई भी दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको नहीं भूला है। Just give you 3 parts. The 3 parts of the sermon I'll give you. 3 हिस्सों में मैं इस संदेश को आपको बताऊंगा। God's promise, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, God's protection, परमेश्वर की सुरक्षा, God's process. और परमेश्वर की क्रिया, परमेश्वर का तरीका। When he has not forgotten, these are the things happens in our life day and again. और जब इन बातों को हम देखते हैं, परमेश्वर कभी हमें नहीं भूलता है, लगातार वो हमारे जीवन में ये करेगा। Every promises of God, every person with promises of God has a protection and a process. और परमेश्वर के प्रत्येक प्रतिज्ञा में, प्रत्येक वाचा में वहां पर एक सुरक्षा और एक उपाय है, वहां पर प्रबंध है। You know, Abraham said to the son, God himself will provide. It's not only to his son Isaac, it's for entire generation. Abraham can stand and say till the people in Egypt, God himself will provide. और यहाँ पर केवल अब्राहम ने अपने इसहाक बेटे के लिए नहीं कहा कि परमेश्वर उपाय करेगा, उसने विश्वास के साथ पूरे अपने इस्राएली लोगों के लिए भी वहां पर ऐसी प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर उपाय करेगा। You can stand and speak to your son as well as your grandson. आप अपने बेटे के लिए और अपने पोते के लिए भी खड़े रह करके इस बात को बोल सकते हैं, God himself will provide. परमेश्वर अपने आप प्रबंध करेगा। There's nothing is visible, still God himself will provide. और वहां पर अभी कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी दृश्यमान नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्रबंध करेगा। There's no bank balance, there is no job, there is nothing in my wallet, my God shall provide. वो बैंक में मेरे पास कोई भी बैलेंस नहीं है, मेरे बटुए में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर उपाय करेगा। I can stand here and say the providential care of God over our life. यहां मैं खड़े रह करके कह सकता हूं कि एक परमेश्वर की देखभाल करने वाली उपाय और प्रबंध के बारे में। When we have to shift the house, और जब हम घर को हम वहां से यहां पर लेकर के आ रहे थे, it looks simple. वहां से लेके इधर रखो. But it's not that. लेकिन वो आसान नहीं। Noble sister is excited. Angel Allen excited. I alone know what will cost. नोबल सिस्टर और एंजल सभी लोग बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन मैं अपने आप में समझ पा रहा हूं कि उसमें कितना कीमत चुकाना होगा। Purchased in the November 2020. The house was purchased in November 2020. नवंबर 2020 में उस घर को हमने खरीदा। Almost every day Noble sister will come. When are we shifting? When are we shifting? When are we shifting? और प्रतिदिन नोबल आकर के मुझे बोल रही थी, कब हम वहां पर जाएंगे, उस घर में जाएंगे। तो जाएंगे because I am telling her shifting is not easy. और मैंने उनको बताया कि उस घर में जाना बहुत ही आसान नहीं होगा। But I want to tell you, step by step God did a miracle. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कदम कदम पर परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य काम किया। When I took my phone, I thought of text, call, but God would say, calm down. God will say, calm down, I will take care. परमेश्वर ने मुझे बात को बताया कि आप शांत रहो, मैं देखूंगा। Every step God helped. प्रत्येक कदम कदम पर परमेश्वर ने हमारी सहायता की। I stand here to tell you, I have experienced the God's providential care in the graveyard also. और मैं यहाँ पर खड़े रह करके परमेश्वर की
एक प्रबंध के बारे में बताना चाहता हूं। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कब्रिस्तान के अंदर भी प्रबंध कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Trust God. You need to keep telling. You need to keep telling. God Himself will provide. वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, आपको अविरत इस बात को कहते रहना है कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा, परमेश्वर आप ही प्रबंध करेगा। The Lord who promised to Abraham is the same God. Now Moses is standing and declaring the word of God. और परमेश्वर जिसने अब्राहम को प्रतिज्ञा किया था, अभी मूसा भी उस परमेश्वर के सन्मुख में खड़े रह करके इस बात को बोल रहा है। Deuteronomy chapter 6 verse 10 and 11. Come on. Deuteronomy 6 verse 10 and 11. When the Lord your God brings you into the land He swore to your fathers, to Abraham, Isaac and Jacob to give you, a land with large flourishing city you did not build. और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब का नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, Abraham said to his son, God Himself will provide. It is running on to the children to children to children. और जिस प्रकार से परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, उसी बात जो है उनके संतानों के संतानों, पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को हम देखते आ रहे हैं। It was one-on-one between Abraham and Isaac, but what said to Isaac is carrying on towards the generation. वो तो केवल इब्राहिम और इसहाक के बारे में ही वो बात कही गई थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी पीढ़ी से पीढ़ी तक वो बात आगे बढ़ती रही। The last is beautiful. Come on, a land with large flourishing city you did not build. और यहाँ पर इस प्रकार से कहा है कि बड़े बड़े अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए। Verse 11, come on, house filled with all kinds of good things you did not provide. God provided. और अच्छे अच्छे पदार्थ से भरे हुए घर जो तूने नहीं बनाए, परमेश्वर ने तेरे लिए प्रबंध किया है। Hallelujah. Hallelujah. Stand and says, so Moses says, the God who gave promise to Abraham is the same God provides for us. वो परमेश्वर का दास मूसा वहां पर खड़ा रह करके कहता है कि जिस परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी थी, वही परमेश्वर हमारे साथ में है और वही उपाय करेगा। Come on, verse 11 ma, come on, where's in the screen? Come on, house filled with all kinds of good things that you did not provide. और ऐसे भरे हुए घर जो तूने नहीं बनाए। It's not through your salary. It's not through your savings. It's not through your father. It's not through your father-in-law. God Himself provided for you. आपके तनख्वाह से नहीं और आपके पिताजी ने उसका प्रबंध किया उन बातों से नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने आप में ही उन बातों का प्रबंध किया है। That day Abraham stood and said, God Himself will provide. उस दिन अब्राहम खड़े होकर के कह रहा है कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। The same God was doing till date. ओ वही परमेश्वर आज दिन तक करते आया है। Hallelujah. Hallelujah. The God who provided for your father, the God who provided for your grandfather will provide for you, for your children also. Continuously provide to generation and generation without failing in our life. जिस परमेश्वर ने आपके पिता के लिए प्रबंध किया है, आपके दादा के लिए प्रबंध किया है, वही परमेश्वर आपके लिए भी प्रबंध करेगा। Go and talk to our parents. आप जा करके अपने माता पिता से भी बात करें, Talk to our grandparents. अपने दादा दादी से बात करें। I love to listen to their stories. और मैं बहुत ही अच्छा लगता है मुझे उनकी कहानी सुनने में। When my grandmother's father came to Christ, he gave all the land for the church. जब मेरी दादी परमेश्वर के मसीह में आई, तब उन्होंने अपनी सारी जमीन कलीसिया के लिए दे दी। Everything handed over to church. सब कुछ उनके पास था, उन्होंने कलीसिया को सौंप दिया। They said, Christ is enough for us. उन्होंने कहा कि यीशु हमारे लिए काफी है। My father alone knows that one, the paper work was done. और मेरे पिताजी को ही केवल मालूम था जो कागजात उनके लिए किए गए थे। Strictly said, nobody should not know this one. उनने स्ट्रिक्टली इस बात को बताया कि कोई भी इस बात से इस प्रकार से नहीं करेगा। My grandfather never said to his children, said only to my father, never to tell anybody. और मेरे दादा लोगों ने दूसरे लोगों को नहीं कहा, लेकिन मेरे पिताजी को ही कहा इस बात को। Because he was fearful, one day the children may take back the land.
क्योंकि उनको डर था कि जो बच्चे हैं वो एक बार वापस उस जमीन को ले लेंगे करके। Hallelujah. हालेलुया। No, talk to them how they walk the faith of life. आप उनसे जा करके बात करें अपने माता पिता से, कैसे वो लोग ने विश्वास का जीवन जिया है। Moses stands and says, the God who through Moses said, through Abraham said, God himself will provide, has provided you all these things. और मूसा वहां पर खड़े रह करके कहता कि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जिस प्रकार से वाचा किया था और उसके लिए उपाय किया, परमेश्वर वही परमेश्वर आप लोगों के लिए प्रबंध करेगा। God provides. परमेश्वर उपाय करेगा। Second thing, when God provides, he protects. दूसरी बात, जब परमेश्वर प्रबंध करता है तो सुरक्षा भी करता है। Somebody say. कोई कहे I keep repeatedly saying in the church, the things that you receive through prayer, you should keep it in prayer. बार बार मैं इस बात को कलीसिया में बताते रहता हूं, जो बातें आपने प्रार्थना के साथ पाई है उसको प्रार्थना के अंदर सुरक्षित रखें। Deuteronomy 7:20-23. Come on, you can note it down. Deuteronomy chapter 7, verse 20-23. Moreover, everybody come on, moreover, the Lord your God will send the hornets among them, until even the survivors who hide from you have perished. यहाँ व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 20वें पद में हम देखेंगे, इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच में बर्रे भी भेजेगा, यहाँ तक कि उनमें से जो बचकर छिप जाएंगे वे भी तेरे सामने से नष्ट हो जाएंगे। Come on, God is not just gave a promise, God has not just provided them. That is, our God is a God who protects also. और परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, केवल प्रबंध करता नहीं है, वो सुरक्षा भी देता है। He says to Moses, even the enemy can go to the bunker and stays. I will send the hornets and remove them from there. और परमेश्वर ने उनसे कहा कि ये लोग जो है चाहे छुप भी जाए तो भी मैं बड़े बर्रे को भेज करके उनको नष्ट कर दूंगा। I want to tell you, church, there are so many in the bunker behind us, beneath us, before us. You do not know, but don't worry about them. God sends the hornets, God will remove them. मेरे प्रियो, आपके सम्मुख में आप नहीं जानते, ऐसे कई बंकर होंगे, बहुत सारे से दुष्टता भरे लोग पाए गए होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि ऐसे बर्रे को भेज करके परमेश्वर उनको नष्ट करेगा। You can stand and say, God, you provided, you will protect me, Lord. आप खड़े रह करके इन बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे लिए प्रबंध किया है और आप भी मेरे लिए सलामती करेंगे। Somebody say, कोई कहे the मैं- job that God has given to you, the house that God has given to you, the place God has given to you, He will protect you in that place. जो नौकरी परमेश्वर ने आपको दिया है, जो घर आपको परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने आपको दिया है और परमेश्वर ही उसकी सुरक्षा करेगा। God says to them, do not be afraid. Even your enemy who are hiding to attack you later will never come before you. और परमेश्वर यहाँ पर उन लोगों को कहता है कि तुम डरो मत, यदि तुम्हारे जो दुश्मन हैं छिपे हुए हैं तो भी आप उनको मैं नष्ट करूंगा। Verse 21, come on, do not be terrified by them. और 21वें पद में इस प्रकार से लिखा है, उनसे भय न खाना। The Lord your God is among you, is great and awesome God. और जो परमेश्वर तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है वो महान और भय योग्य परमेश्वर है। God gave the promise. परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दिया है। God gave them protection also. ओ परमेश्वर उनको सुरक्षा भी दे रहा है। Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you, my brothers and sisters, we should live without fear, full of faith, knowing God is our provider as well as protector. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें बिना डरे बिना भय खाए जीना है, और हम क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए प्रबंध करता है वो हमारी सुरक्षा भी करता है। Verse 22, how God is teaching them. Come on, verse 22 says, the Lord your God will drive out this nation before you. और ऐसी अपेक्षा ना रखे कि परमेश्वर कुछ तुरंत ऐसे ही कर देगा। The Lord is not making 2 minutes Maggi noodles. और परमेश्वर ऐसा नहीं है जो 2 मिनट में होने वाली मैगी को बना दे, नूडल्स को बना दे। Mummy alone can make that one. वो केवल माँ ही बना सकती है। The Lord said, little by little, wait, little by little, don't get panicked. I will do it little by little. और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि राह देखो, धीरे धीरे, आप ऐसे दुखित मत होना है, धीरे धीरे मैं करूंगा। God is given the promise, given the protection. He said, you will not be allowed to eliminate them all at once. और परमेश्वर यहाँ पर जिसने प्रतिज्ञा किया है वो इस प्रकार से कहता है कि मैं एक ही बार में इन सबको नष्ट नहीं करूंगा। See how God very carefully says, come on,
or the wild animal will multiple around you and they may attack you. और यहाँ पर लिखा है, जो बनेले पशु हैं बढ़कर तेरी हानि करेंगे। Hallelujah. God cares for us. He protects us. और But परमेश्वर, just trust Him. Just keep trusting Him. ओ परमेश्वर ऐसे बनेले पशुओं से भी हमारी सुरक्षा करता है। केवल आप उसके ऊपर भरोसा रखें, उसके ऊपर विश्वास रखें। Lord, I am under your protection, O Lord. परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपके सुरक्षा के नीचे हूं प्रभु। Nobody will take your life till the day God has kept for you. ओ कोई भी आपका जीवन नहीं ले सकता है जितने दिन परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हुए हैं। Somebody say. कोई कहे There's so many of them, they talk to me, they say, Pastor, so many people are dying. What do you say? My faith is this. When God's times comes, even if it is next second, we need to be prepared to go. बहुत सारे लोग आकर के कहते कि ये सब ऐसे प्रकार से लोग मर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमारा विश्वास है यदि आज भी 2 सेकंड के बाद भी हमको उठा लिया जाएगा तो हम तैयार है उसके लिए। Till He takes, you will remain in His protection. जब तक वो आपको उठा नहीं लेता है आप उसकी सलामती के अंदर ही है। Third one, God's तीसरी बात, process in provision. परमेश्वर की जो तरीका है प्रबंध करने का। Deuteronomy 8 verse 2 to 5. व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 2 से 5। Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you will keep His commandments. और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। He humbled you, caused you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestor had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे तू न और तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझे को खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। God provides, God protects, but there is a process. परमेश्वर उपाय करता है, प्रबंध करता है, सुरक्षा देता है, लेकिन उसमें कुछ क्रिया भी है, कुछ तरीका भी है। On the way, God tested them. रास्ते में परमेश्वर ने उन लोगों की परीक्षा लिया। How you handle your temperament. किस प्रकार से आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। Your anger and hunger, how you handle. आप आपके गुस्से को और आपकी भूख को किस प्रकार से आप संभालते हैं। I'm not saying, Bible is saying, आप ऐसा देख रहे कहाँ लिखा है? He made you to hunger and He fed you with manna. वो उसने आपको भूखा भी होने दिया और उसने मन्ना से भी आपको तृप्त किया। He taught you that man shall not live by bread alone. उसने आपको सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता। Hallelujah. हालेलुया। Allow God to be in this process. परमेश्वर को उस बातों के अंदर परमेश्वर को अनुमति दीजिए। Even this also, I am hungry. This also my God will provide. यदि आप भूखे हैं, आप ऐसी अवस्था में हैं, तो भी आपको इस बात को ध्यान रखना कि मेरा परमेश्वर प्रबंध करेगा। My God will provide everything that I am in need. मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा हमारे लिए प्रतिज्ञा किया है, मेरे लिए प्रतिज्ञा किया है। प्रभु आप उसको पूरा करेगा और उसको सुरक्षित भी रखेगा। मैं आपकी क्रियाओं के अंदर, आपके तरीके में प्रभु अपने आप को समर्पित करता हूँ। The Lord Himself will provide. परमेश्वर अपने आप ही प्रबंध करेगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते You know, when Abraham said this confession prophetically by faith to his son, it's the same word for one person as well as 50-60 lakh people also. और परमेश्वर जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने बेटे के लिए जो बात विश्वास के साथ बोली, जो वाचा वहां पर बोली है, वही बात हम देखते हैं कि 50-60 लाख इस्राएलियों के लिए भी बात बोली गई। Same God can provide for one person
also 100%. वही परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए भी प्रबंध किया और 100 लोगों के लिए भी प्रबंध किया। God provides. परमेश्वर प्रबंध करता You know, when है। I was going through this word, I was crying, I was praying for our nation. और जब मैं इस वचन में से मनन कर रहा था, तब मैं मेरे देश के लिए रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था। Same thing Pandian brother posted in the group also. और वही बात पांड्यन ब्रदर ने आज ग्रुप में पोस्ट किया। Come on, Deuteronomy 8 verse 9. व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 9वां पद। You know, God was telling them, the land that you are going, how it's going to become. और परमेश्वर उनको बता रहा था कि जिस देश में, जिस भूमि में आप जाने वाले हो, कैसी होगी। Come on, verse 7 onwards. Come on, chapter 8 verse 7. Everybody. We are going to read this one and we are going to speak over our nation. हम इन बातों को पढ़ने जा रहे हैं। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 7 से लेकर के, और हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Come on, for the Lord your God is bringing you into a good land. क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा Come है। on, a land with brooks, pools of water, with springs flowing in the valley and hills. जो जल की नदियों का और तराइयों का और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। God is saying, the land I'm going to give you is not the land in Egypt. परमेश्वर कह रहा है कि जो देश, जो भूमि में देने जा रहा हूं वो मिस्र में है, वैसी नहीं। Verse 8. Come on, everybody. Verse 8. A land with wheat and, come on, everybody. A land with wheat and barley, wines and fig trees, pomegranate, olive oil and honey. फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है। Verse 9. This is beautiful. I love it. I was praying this word over our nation. Everybody, come on. A land where bread will be no. Come on, everybody. A land where bread will not be. मतलब क्या मालूम है? कोई दरिद्र नहीं होगा, Praise कोई God. भिखारी नहीं Hallelujah. होगा, कोई भूखा नहीं रहेगा. No poor, no poverty, no children, no labor go hunger. और उस देश में अन्न की महंगी न होगी। इसका मतलब यह है कि कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। On that day, Abraham said, my God himself will provide. Even today, the land can say he will provide. उस दिन इब्राहिम ने कहा कि मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। आज दिन तक हम देखते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर पूरा करेगा। I was holding the scripture and praying for our nation. My nation should be like this, Lord. There should be no scare for bread. और हम इस वचन को पकड़ के, वचन को ध्यान में रखते हुए हम प्रार्थना करें और कहे कि मेरे देश में कोई भी इस प्रकार से भूखा नहीं रहना है। Come on, everybody read. A land, I put it like this, India, where bread will not be. Come on, everybody, India, where bread will not be, you will lack nothing. A land where the rocks are iron and you can dig copper out of the hills. और उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। Somebody say, कोई कहे how मैं। beautiful our land became like this. ओ कितने अद्भुत बात है, हमारी भूमि जो है, हमारा देश इस प्रकार से बनेगा। This is because the promise God gave to Abraham, I will give you a land. और यही जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया अब्राहम को कि मैं तुझे एक देश दूंगा। A land where bread will not be scared. और वहां पर अन्न की महंगी ना होगी। Today, how many of our nation people have a 3 square meal? हमारे देश में कितने लोग 3 समय का भोजन प्राप्त करते हैं How many of them eat 2 meals? और कितने लोग 2 वक्त के ही भोजन ले पाते We हैं। need to ask God, God, you promised to Abraham, the same God is our God. The same God can do in my nation also, Lord. वो हमें प्रार्थना करना है और कहना है कि परमेश्वर जो वह प्रतिज्ञा आपने अब्राहम को दिया था, प्रभु वही परमेश्वर है, मेरे देश के लिए भी वैसा होना है। Yesterday I was watching about a survey about country Burundi in Africa. मैं कल देख रहा था अफ्रीका के अंदर जो ब्रूंडे जगह है, उसके वहां पर एक सर्वे किया जा रहा था। 80% of them they use cycle. 80% लोग वहां पर साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। They say we can't afford to buy a bike. और वो लोग कहते हैं कि हम बाइक खरीदने में समर्थ नहीं हैं। They drive cycle hundreds of kilometers every day. 100 मील तक वो लोग साइकिल चलाते प्रतिदिन। Land of hills and mountains. पहाड़ों और तराइयों की
देश है वो। In the cycle, they carry 150 to 250 kilo weights, bananas, wood, everything they carry and go. और 150 किलो के करीब करीब वो लोग केले और इस प्रकार से लकड़ियां साइकिल के ऊपर लाद के वो लोग लेकर के जाते हैं। So heart was broken, how people are struggling. ओ मेरा दिल उस बात को सुन करके टूट गया, किस प्रकार से वो लोग संघर्ष करते हैं। A boy named Richard, he was driving cycle throughout the nation just to provide for his children. एक भाई जिसका नाम रिचर्ड है, वो पूरे देश में अपने इलाके में साइकिल लेकर के घूमता है, इस प्रकार से संघर्ष करता है अपने परिवार को भोजन खिलाने के लिए। Few years before, we had a brother from Brunei studying in our Gandhinagar. और थोड़े वर्ष पहले हमारे पास एक भाई जो यहाँ पर गांधीनगर में पढ़ाई करने आए थे ब्रुंडे से, Gave him 1,000 rupees. Gave 1,000 rupees to him. उनको हमने 1,000 रुपया दिया। He said, you gave me 25,000. और उनने मुझे बताया कि आपने मुझे 25,000 रुपये दिए। I gave 1,000, उनका इसमें 25,000 है। हम यहाँ पर 1,000 रुपया उनको देते हैं, उनके देश में उसका मूल्य बढ़ जाता है, 25,000 रुपया हो जाता How है। many nations are struggling, but God promised the land where bread will be no scare. कितने सारे देश इस प्रकार से संघर्ष में से होकर के जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर इस प्रकार से प्रतिज्ञा कर रहा है कि तुम्हारे देश के अंदर अन्न की महंगी ना We होगी। need to pray. We may not have all the luxurious things that we need in our life, but our nation, every person must go to sleep with stomach full. और हमें ऐसे आरामदायक जिंदगी के लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन हमें ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे देश के अंदर रात को कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। The bread will be no scare. और वहां पर अन्न की रोटी की कमी ना होगी। Lift a hand and pray for our nation. Come on. हाथ उठा करके हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। We speak Deuteronomy 8:9 over our beloved land, O Lord. ओ हमारे देश के ऊपर प्रभु जी हम व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 9वें पद को बोलते हैं। No labor should not go hungry, Lord. No village should not go in hunger, Lord. कोई भी मजदूर परमेश्वर भूखा ना रहे प्रभु, कोई भी व्यक्ति कोई भी गांव में कोई भी भूखा ना रहे। No one in slum should not go in hunger, Lord. कोई भी झुपड़ी में रहने वाला, झुग्गी में रहने वाला प्रभु भूखा ना रहे। Come on, hallelujah. The bread should not be scarce in our nation, should be abundance, O Lord. वो हमारे देश के अंदर रोटी की कोई कमी ना होने पाए प्रभु जी, भरपूरी में वो होने पाए। Come on, there may be no house, there may be no bike, no car, but there should be a bread available for everyone in 1.38 billion people of our nation, O God. वो परमेश्वर वहां पर ऐसा घर, ऐसा कोई भी जगह ना हो परमेश्वर, 130 करोड़ लोगों के लिए परमेश्वर हमारे देश में रोटी उपलब्ध होने पाए। Bless our land, O God. हमारे देश को आप आशीषित करें प्रभु। Bless all the state, all the city, all the village, in every pin code. We pray your blessing, O Lord. हर एक राज्य को प्रभु जी, हर एक गांव को, हर एक शहर को, हर एक पिन कोड जितने भी है प्रभु जी, उन सभी में प्रत्येक लोगों को आप आशीष करें प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना Keep करते हैं। praying, keep praying, keep praying using the word of God. ओ परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हुए आप प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। A land where bread is not be scared. हमारे देश में रोटी की कोई भी कमी ना होने पाए। Then God spoke to the children of Israel how He promotes them after a process. God promotes them. और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा के बाद उन लोग की तरक्की किया। I said God gives the promise. मैंने बताया परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है। In the promise there is a protection. और वहां पर प्रतिज्ञा के अंदर सुरक्षा है। And in the promise there is a process. और वहां पर उसके अंदर क्रिया भी है। And the fourth one, in the promise there is a promotion. और चौथी बात हम देखते हैं कि वहां तरक्की भी है। Deuteronomy 11 verse 10 to 12 we are going to read how God gives them the promotion. व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय 10वां पद हम देखने जा रहे हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने उन लोग को बढ़ोतरी दी, It's तरक्की beautiful. दिया। Come on, the land you are entering to take over is not the land like the land of Egypt.
देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो मिस्र देश के समान नहीं है। Come on, God tell to them, the place I'm taking you, the place I promised to provide for Abraham, it's not the land where you are coming from. और परमेश्वर यहाँ पर इन लोगों को कहता है कि जिस देश में तुम लोग को मैं भेज रहा हूं, जो वाचा मैंने अब्राहम से करी थी जिस देश में भेजने के लिए, वो देश जो है मिस्र के समान नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Says, come on, which you have come from, where you planted your seed, come on, where you planted your seed and irrigated it by foot as in a vegetable garden. जहां से निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। God was telling them, परमेश्वर उनको कह रहा है, in Egypt, this is how you did it. मिस्र के अंदर किस प्रकार से तुम लोग बोते थे। Put water, just stamp on it, and you put little vegetables, and it comes out. और तुम लोग अपने पैरों से नालियां बनाते थे, बीज बोते थे और इस प्रकार से तुम करते थे। But the lifestyle that you are going to live there, it's not going to be like that. जिस प्रकार से जीवन आप मिस्र के अंदर जीते थे, वैसा जीवन यहाँ पर नहीं होगा। Come on, verse 11, the Lord says, but the land you are crossing the Jordan to take possession of the land is of mountains, valley that drinks rain from heaven. परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है। You stayed there, you just put a plant, you just put the vegetation, but the land that I'm giving you a promotion. It's going to be a hills and mountains and valley. It's going to be a large trees. No longer with the vegetables you are going to live. और वो तो कहता है कि वहां पर जो मिस्र में थे तुम लोग थोड़े से बीज बोते थे, थोड़े पौधे लगाते थे, लगाना पड़ता था तुम लोग को, लेकिन जिस देश में मैं तुम्हें लेकर के जा रहा हूं वो पहाड़ों और तराइयों की और बड़े बड़े पेड़ों की जमीन है, देश है, वहां पर तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। The Lord said to them, in Egypt you are taking water from the Nile and you are pouring it and you are preparing the land, but the land I am giving, I will send rain on that land. परमेश्वर कहता है कि मिस्र के अंदर तुम लोग नील नदी में से पानी लेकर के आकर के वहां पर सिंचाई करते थे, लेकिन परमेश्वर यहां पर कहता है कि जिस देश में मैं तुम्हें लेकर के जा रहा हूं उस देश में मैं आकाश की वर्षा से उसको सींचूंगा। It's going to be a different experience you are going to have. और वो तो एक अलग प्रकार का अनुभव होने वाला है। Verse 10, come on, go back to verse 10. That's what it says. When you planted your seed, come on, verse 10, ma, come on. When you planted your seed and irrigated it by foot, there you are not going to irrigate it. I am going to send a rain from heaven. I am going to bless that land. और कहते कि तुम लोग जहां पर उस देश के अंदर अपने बीज बोने के बाद अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे, लेकिन कह रहा है कि जिस देश में मैं तुम्हें लेकर के जा रहा हूं वहां पर तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं, मैं आकाश की वर्षा से उनको सींचूंगा। Saying, from the little plant, I'm giving you a promotion to be a tree. छोटे से पौधे से मैं तुम्हें तरक्की दे करके एक बड़ा वृक्ष बना रहा हूं। So far you are doing a gardening, but I'm planning you to take you to a forest. From the gardening, I'm taking you to a forest. बागवानी करने में से मैं तुम्हें उठाकर एक जंगल के अनुभव में लेकर के जा रहा हूं। So far you are in small, few days plants you are doing it. I'm taking to a place. It's going to be hills and mountains. तुम छोटे छोटे पौधे की देखभाल कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे देश में लेके जा रहा हूं, पहाड़ और तराइयों में, बड़े बड़े पेड़ के मध्य में। Come on, listen the one. And Abraham said, my God will provide. It's talking about a greater altitude. वो पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर कहता, पर अब्राहम कहता है सॉरी, मेरा परमेश्वर आप ही उपाय करेगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर और ऊंचाइयों में लेकर के जाता है। Taking the children to higher and higher. वो अपने संतानों को और ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। You are just in the vegetable garden. I'm taking you to higher and higher. तुम तो केवल साग पात के बगीचे में थे, लेकिन मैं तुम्हें और ऊंचाइयों पर लेके जा रहा हूँ। You are just off the onion and garlic. I'm taking to higher and higher. तुम केवल लहसुन और प्याज में
रुके हुए थे, पड़े हुए थे, लेकिन मैं तुम्हें और ऊंचाइयों पर ले जा रहा हूँ। You are with a fish and cucumber. I'm taking to higher and higher. ओ तुम मछली और ककड़ी के बीच में थे, लेकिन मैं तुम्हें और ऊंचाई पर लेकर के जा रहा हूँ। Land that drinks water from heaven. ओ ऐसा भूमि, ऐसा देश जो स्वर्ग से सींचा जाता है। Verse 12. Shall we stand in the presence of God and read? Come on, ma keyboard guitar. Come आइए on, हम ma. परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर के इस बात को पढ़ेंगे। When Abraham said, "The Lord Himself will provide," this is what it is. The land your God cares. जैसे परमेश्वर ने अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर अपने आप उपाय करेगा, और जिस प्रकार से उस देश में जो परमेश्वर तुम्हें लेके जा रहा है, He cares. वो देखभाल करेगा। Come on, everybody. It is a land the Lord your God cares for. The eye of the Lord your God are continuously on it from the beginning of the year to its end. वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। He not only gives you the promotion, केवल आपको तरक्की ही नहीं देगा, He give you the progress. और वो आपको बढ़ोतरी भी देगा। God said you will keep growing. वो परमेश्वर कहता है आप लगातार बढ़ते जाओगे, God Himself will provide. और परमेश्वर आप ही उपाय करेगा, प्रबंध करेगा। I do not know how difficult your life is today. मुझे नहीं मालूम आपका जीवन किस प्रकार में संघर्ष में है आज। Maybe your kitchen is empty, your bank is empty, no job, how things are going to be. Stand and say, God Himself will provide. आपके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, आपकी नौकरी चली गई है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर आप ही प्रबंध करेगा। प्रभु आप प्रबंध करेंगे, आप पूरा करेंगे। My situations are very difficult, Lord. मेरी परिस्थिति तो प्रभु बहुत कठिन है। Only you can do something in my life. ओ मेरे जीवन में प्रभु केवल आप ही कुछ कर सकते हैं। I want to give you a few minutes, you pray. In what part God wants you to walk in and do a miracle? मैं आपको थोड़ा समय देना चाहता हूँ, आप प्रार्थना करें कौन से क्षेत्र के अंदर आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करे, ऐसा आप चाहते हैं। The God who provided for Abraham, the God who provided for the children of Israel is the same God. जिस परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए उपाय किया, जिस परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए उपाय किया, वही परमेश्वर है आपके लिए। Time and again He will do a miracle. वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य काम करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Come on, pray. He will do a miracle. प्रार्थना करे, वो आश्चर्य काम करेगा। Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord.